Hello everyone, welcome to my class. So today I'll be talking about double circulation system of heart in human beings. So what do you mean by in today's class I will cover up the structure parts of the heart, how it does the structure of a human heart look like, then what are the types of chambers, like how many chambers of heart are present, then what are the functions of the parts of the heart, and then what is double circulation, what is single circulation. Also we'll talk about all the diseases that are associated with the heart, the disorders, and also we'll talk about electrocardiography. Okay, so today's class will be very fun, I think so. So let's move on to the class without any delay. So first we'll talk about the part and structure of heart. Okay, so now first we'll talk about the heart's structure and parts. So basically what are the parts of the heart? So first of all, before we go on to the part of the heart, first I would like to talk about the layers of the heart. Okay, so in this heart there are three layers. Okay, there are three layers. What are the three layers? First is your endocardium, and then it's the myocardium, and then it's the epicardium. So endocardium, myocardium, and epicardium. So basically epicardium, this constitutes the pericardium part. So what is pericardium? So out here you can see here the pericardium is the outer part. Okay, this is the sac which holds the heart. Okay, pericardium is basically the sac which holds the heart. So what does it do? It will hold the heart so that the heart doesn't clash with the other organs present in the nearby it. Okay, so it provides a protective layer, liquid in the outside the heart, which will protect the heart and will help the heart to not clash or rub against other organs that are present nearby the heart. So that is the function of the pericardium. So now human heart is four chambered heart. So that means there are two auricles and there are two ventricles. So if you see out here, I'm showing it to you. So see out here these two. Okay, these two are the, it's already given in the diagram. The flowchart is the heart has been labeled already. So you can see these are the atrium. Okay, or you can say auricles. So these are the auricles. Okay, these two are the auricles, and then down it is the ventricles. Okay, so this, and now when from the left auricle to left ventricle there is the mitral valve or bicuspid valve. This is the opening. Okay, so from here this will enter. Okay, the blood will enter, and here from this auricle to ventricle there is the tricuspid valve. You can see a tricuspid valve. So from here it will enter. Okay, the blood will enter. So what happens, I'm just talking about the structure. Okay, the parts of the heart right now, not anything else. So outer what happens is, so first of all, from the entire part of the body, the deoxygenated blood, that means the vessel, the blood which is poor of oxygen, or you can say it is deficient of oxygen. Okay, the oxygen is very less, so it is a deoxygenated blood. Okay, so this is the upper body, from the upper body and from the lower body. See down the lower body, from these two part. Okay, the superior vena cava, it will bring in the deoxygenated blood inside the heart. Okay, so when it reaches the heart, so what will happen, first it will go to the right auricle and then to the right ventricle. So right auricle to right ventricle, then from right ventricle it will go on to the pulmonary artery. You can see a pulmonary artery. So here there is another valve which is known as atrial valve. Okay, so from here it will go to the pulmonary artery. So from the pulmonary artery, this will carry the deoxygenated blood to the lungs. Okay, it will carry to the lungs. So you can see out here it will carry to the lungs. So once it goes to the lungs will purify the blood. It will convert the deoxygenated blood to oxygenated blood. Okay, and then the oxygenated blood, it will come back to the heart with the help of the pulmonary veins. Okay, see here pulmonary veins. So पल्मोनरी वेंस बेसिकली क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है, तो ये उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये प्यूरिफाई हो गया है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी वेंस वो लंग से वो हार्ट में लेके आएगा. उसके बाद हार्ट में क्या होगा, ये हार्ट में कहाँ पे लेके आएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगा या फिर लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टरीज. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से देर आर ओपनिंग नोन एज सेमिलुनर वाल्व्स. ओके, देखिए यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व्स दिया है, यहाँ पे दो ओपनिंग होता है. ओके, तो बेसिकली फ्रॉम
फ्रॉम द सेमिनल वेल्व्स इट इज कैरीड ऑन टू द आउटा या फिर आर्टरीज भी कह सकते हैं. सो आउटा आर्टरीज वो क्या करते हैं, इट कैरीज द ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो लेके जाते हैं, एंड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली अपर बॉडी में लेके जाते हैं और नीचे में आप देख सकते हैं ये लेके जाता है टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये है आपका फंक्शन ऑफ आर्टरीज आवर्टा. यहाँ पे हमने बात कर लिया. अब यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे कुछ वेसल्स है. यू नो द हार्ट का जो कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन सिस्टम है, बेसिकली वहाँ पे दो तरह की चीज़ें वो है नोड्स जो बोलते हैं हम लोग. एक है आपका एवी नोड, एक है आपका एसए नोड. ओके, साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड. तो साइनोएट्रियल नोड क्या करते हैं, वो हार्ट बीट में हेल्प करता है. तो जब साइनोएट्रियल नोड क्या करते हैं, वो हार्ट बीटिंग में हेल्प करते हैं. और एवी नोड क्या करता है, एवी नोड जो पल्सेस है, वो जो सिग्नल्स है, वो हेल्प करते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, आप पे देखिए, यहाँ पे फॉलो कीजिए डायग्राम को. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इन द एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एवी नोड, जो क्या करता है, ये ऑरिकल से वेंट्रिकल तक का वो सिग्नल पास करते हैं. फिर वहाँ पे बंडल ऑफ हिस भी होता है. दीज आर सम अदर बंडल्स विच आर प्रेजेंट, विच आर हेल्पिंग इन द कंडक्शन सिस्टम. ओके, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें हेल्प करता है. उसमें बंडल ऑफ हिस वेरी इंपॉर्टेंट. बंडल ऑफ हिस क्या करता है, वो जो सिग्नल्स है वो ये पास करता है टू पुरकिंजी फाइबर्स. यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पुरकिंजी फाइबर्स. ठीक है, और फिर पुरकिंजी फाइबर्स क्या करता है, वो हेल्प करता है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ओके, ये हार्ट कंट्रैक्शन में हेल्प करता है. इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द ऑरिकल टू वेंट्रिकल. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ये पूरा दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ द हार्ट, जहाँ पे आपका नोड्स काम करते हैं. जो कनेक्शन सिस्टम में आपका क्या क्या काम करता है, मैंने क्या बोला आपको, आपका एवी नोड है, एसए नोड है, बंडल ऑफ हिस है, पुरकिंजी फाइबर्स है. ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं ना कंडक्शन सिस्टम, हार्ट को बीट करने में, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो और उसके अलावा स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपका, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है, वीना कावा है, आर्टरीज है, आउटा है, पल्मोनरी आर्टरी है. जब क्या करते हैं, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं टू द लंग. ठीक है, फिर लंग से कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स, वो लंग से लेके आते हैं वापस हार्ट में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाते हैं, वेंट्रिकल से फिर आउटा के थ्रू या फिर आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फॉरवर्ड होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड इज कमिंग टू द हार्ट, इट इज ट्वाइस. ओके, हार्ट के थ्रू ब्लड दो बार पास होता है. सो द ब्लड इज पासिंग टू द हार्ट ट्वाइस, देयरफॉर इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट. ओके, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहते हैं. सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, जब ब्लड सिर्फ एक ही बार पास होता है हार्ट से, उसे कहता है सिंगल सर्कुलेशन. एंड व्हेन ब्लड पासेस ट्वाइस टू द हार्ट, इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. डबल सर्कुलेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं फिर से बता रही हूँ आपको. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लंग्स है. ओके, ये लंग्स है. तो लंग्स में क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे लंग्स है. तो लंग्स से क्या हो रहा है, पहले आपका हार्ट से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहे हैं, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ रहे हैं. पहले बेसिकली क्या होता है, पहले बॉडी से आपका, सारे बॉडी से आपका ये आता है आपका हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से आता है हार्ट में, और फिर हार्ट से जाता है पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में. तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्लड दो बार पास हो रहा है थ्रू द हार्ट, तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन इन हार्ट. ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं, आप यहाँ पे डायग्राम फॉलो कर सकते हैं. पहले क्या होता है, बॉडी से जाते हैं, ये ऑक्सीजन पुअर, देखिए ऑक्सीजन पुअर है. ठीक है, ये जा रहा है आपका हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में, और हार्ट से फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो बेसिकली इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन इन हार्ट. और ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जो कि आपका होता है, आपका मैमल्स में होता है, रेप्टाइल, हाँ बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स में भी होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट चेम्बर्स ऑफ हार्ट. यहाँ पे देखिए 2 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट, 3 चेम्बर एंड 4 चेम्बर, 2, 3 एंड 4. ओके, 2 किस में होता है, फिशेज में होता है. ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है. 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज में. यहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑक्सीजन, जो आपका ये जो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन वाटर है, ये पहले क्या हो रहा है, ये गिल्स में जा रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे जाके बेसिकली पहले हार्ट से होके जाता है. ओके, हार्ट से क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है टू द लंग्स. ओके, यहाँ पे देखिए लंग्स में जा रहा है, ये हार्ट है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, और फिर लंग्स से फिर क्या हो रहा है,
वो ब्लड प्यूरिफाई होके टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कैपिलरीज कैरी कर रहे हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। ये क्योंकि एक ही बार हार्ट के थ्रू पास हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही बार हार्ट के थ्रू पास हो रहा है ब्लड, सो देयरफॉर इट इज़ अ सिंगल सर्कुलेशन। और ये 2 चेम्बर हार्ट में होता है। यहाँ पे देखिए 3 चेम्बर हार्ट है और ये 4 चेम्बर। तो 3 चेम्बर हार्ट किस में होता है? रेप्टाइल्स में होता है। यहाँ पे एट्रियम 2 होता है, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ 1 होता है, ओके। वेंट्रिकल सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, लेकिन एट्रियम कितना होता है? 2 होता है। और इससे भी यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए ये आपका 4 चेम्बर हार्ट है, जो कि ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल और डबल सर्कुलेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है मेरी प्रीवियस स्लाइड में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। जैसे कि आपको समझ में आया होगा, सिंगल सर्कुलेशन मतलब एक बार सर्कुलेट करेगा, सिंगल सर्कुलेशन। और डबल मीन्स 2 टाइम्स सर्कुलेशन। सिंगल में क्या हो रहा है? एक ही बार टू द हार्ट पास होगा, टू द गिल्स, ओके। फिर गिल्स में जाके वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड वेसल्स होंगे, वहाँ पे वो प्यूरिफाई होगा एंड इट विल बी कैरिड आउट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द फिश। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और डबल में क्या हो रहा है? फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, देन लंग्स टू अगेन टू हार्ट, फिर हार्ट से बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। तो ये हो रहा है डबल सर्कुलेशन। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? बेसिकली एक वेव पैटर्न है। जब हमारा हार्ट बीट होता है, ये मेजर करता है कि हमारा हार्ट बीट कैसा हो रहा है, ओके। लाइक इफ इट्स कॉन्स्टेंट और नॉट, इफ इट्स बीटिंग टू फास्टर टू स्लोअर, टू नो मेजर दैट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज डन। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। यहाँ पे PQRST वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। PQRST ये वेव फॉर्म है, ठीक है। तो पी वेव ये एग्जाम में आता है, मेडिकल क्वेश्चंस में ये आता है। पी वेव क्या है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी वेव क्या है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। ये देखिए यहाँ पे पी वेव, ओके। फिर क्यू होता है क्या? क्यू में क्या होता है? बेसिकली एट्रियल ये एट्रियल मतलब एट्रियम का बात है, जब एट्रियम में ब्लड आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे डिपोलराइज हो जाता है। आपका जो ब्लड है वो एट्रियल से कहा जाता है, वो वेंट्रिकल्स में जब जाता है तो वो हो जाता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यहाँ पे क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे रेज हो रहा है आर में, ओके। तो आर में यहाँ पे हो रहा है, ये बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। QRS में क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ओके। और फिर टी में देखिए ये क्या है? ये धीरे धीरे ये रेस्ट हो रहा है, ओके। पहले क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्सेशन, फिर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब टी की तरफ आता है तो बेसिकली धीरे धीरे वो रिलैक्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये फिर से रिपोलराइज हो रहा है, पहले डिपोलराइज होता है हार्ट में, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जब रिलैक्स होता है, तो फिर से वो रिपोलराइज होता है। तो टी वेव क्या है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और आपका QRS क्या है? आपका वेंट्रिकुलर यहाँ पे डिपोलराइजेशन। और पी क्या है? यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी होता है एट्रियम में और QRS होता है वेंट्रिकल में, और टी फिर से वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वो वापस वो रिपोलराइज हो रहा है, ठीक है। ये आपका PQRST वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, ओके। कि QRS क्या है, आपका P क्या सिग्निफाई करता है, T क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेजर करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है। वो इट इज़ मेजर्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ओके। और उसको वेव्स को क्या है, वो नाम क्या है? PQRST वेव कहा जाता है उसको, वो फॉर्म है, वेव का फॉर्म है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो बेसिकली फर्स्ट है आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके। ये क्या होता है? अगर आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है या फिर सडनली इट विल स्टॉप, ओके। आइदर इट विल स्टॉप और इट विल रिड्यूस। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर आपका ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन डिप्राइवेशन होगा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा नहीं, हार्ट में भी ऑक्सीजन डिप्राइव होगा, और एवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ, ओके। सो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज it's a very serious disorder of the heart, okay. And other heart disorders are normally heart attack hota hai, heart failure, okay, arrhythmia and angina. These are all the disorders of the heart. So now we'll come to some quick notes which have already come in the exam, जो already exam में आ चुका है। previous papers से मैंने कुछ points लिया हुआ है, कुछ questions लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। So basically normal एक human का normal heartbeat का जो rate होता है वो क्या होता है? It ranges from the 60 to
100 बीट्स पर मिनट. ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं पल्स. पल्स क्या होता है? 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट होती है उसे कहा जाता है पल्स. और इस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज जब ब्लड आपका जब फ्लो होता है ना, जो ब्लड का जो फोर्स होता है ड्यूरिंग द फ्लो, ओके, वो कितना प्रेशर वो एग्जर्ट करता है ऑन दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर. और इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द सिग्नल्स ऑफ द हार्ट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है PQRST फॉर्म, वेव फॉर्म में होता है. इट विल मेजर योर हार्ट बीट. ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा है अबाउट बंडल ऑफ हेयर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, याद है? सिग्नल्स जो पढ़ा है, तो वो सिग्नल्स को ये इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते हैं. ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो क्या होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द PQRS वेव. ओके, तो उसी चीज़ को ये इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, सो आउटा. आउटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. और आउटा क्या करता है? इट कैरीज द ऑक्सीजनेट ब्लड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज. ओके, अच्छा, तो एक पूरा दिन में हाउ मच लीटर ऑफ ब्लड इज यूजुअली पम्प्ड? It is around 6,000 to 7,500 liters of blood. Okay, ओके. अभी मेल हार्ट और फीमेल हार्ट दोनों का हार्ट का जो वेट है वो डिफरेंट होता है. ओके, सो मेल हार्ट का आपका एवरेज वेट क्या है इसका? 280 to 340 ग्राम्स. और फीमेल का हार्ट का क्या है? 230 to 280 ग्राम्स. दीज आर सम वेरी क्विक नोट्स ऑफ द हार्ट. तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा. तो मैं एक स्पेशल क्लास लूँगी जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, क्लास 10 के लिए है बेसिकली ये डायग्राम, और ऑल्सो क्लास 11 में भी है ये. तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगी जहाँ पे आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स. मैंने इस क्लास में डायग्राम का पार्ट नहीं रखा है. मैं जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसका मैं एक ही दिन में एक ही क्लास लूँगी जहाँ पे आई विल टेल यू हाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम्स वेरी इजीली. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास. अगर आपको अच्छा लगे, do like the video. Okay, press on the like icon, share it among your friends, with the other uh, classmates, with your other students and all. And please do subscribe to my channel for more such videos. And have a very nice day and all the best for your exam. अगर आपको समझ में नहीं आए, do comment and let me know. I will try to clear your doubts. Thank you so much.